سیلاب سے متاثرہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز آندھی اور بارش، بنیر کے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ، امدادی سرگرمیوں میں مشکلات، شانگلہ میں تیز بارش کے بعد یختنگی میں آبی ریلا سڑک بہا کر لے گیا، سوات میں بھی بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، مانسہرہ میں موسلادھار بارش سے سڑکیں زیر آب آ گئی، ایبٹ آباد اور گردونواں میں بھی تیز بارش، پانی گھروں اور مارکیٹوں میں داخل، بنوں میں آندھی اور طوفان، شہری خوف کا شکار، ڈیرہ اسماعیل خان میں بارش اور آندھی سے درخت اکھڑ گئے، سولر پینل ٹوٹ گئے، لکی مروت کرک میں تیز بارش، گلگت بلتستان میں آندھی اور طوفانی بارش سے تباہی، چلاس میں آندھی سے مکان کی دیوار گر گئی، 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی، گلگت کے علاقے گودئی میں تیز بارش اور سیلاب سے فصلیں تباہ ہو گئی، درخت اکھڑ گئے، استور میں آندھی اور تیز بارش، مشکن میں تودے گرنے سے استور ویلی روڈ ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ عالمی اور علاقائی مسائل پر پاکستان اور بنگلہ دیش کے خیالات یکساں ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان 1 سال میں مثبت پیش رفت آئی، ایسا ماحول بنائیں جس میں کراچی سے چٹاگانگ، کوئٹہ سے راجشاہی اور لاہور سے ڈھاکہ تک نوجوان مل کر کام کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن میں تقریب سے خطاب، کہا دونوں ملکوں کی عوام اور خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے، دورے کی دعوت پر بنگلہ دیش کا شکریہ ادا کیا، کہا کئی سال بعد بنگلہ دیش کا دورہ خوشی کا باعث ہے۔ اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو، اسحاق ڈار نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے رہنماؤں اور کارکنوں کی ثابت قدمی کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم ڈھاکہ میں چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سمیت بنگلہ دیش کی اعلیٰ قیادت سے ہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر تجارت جام کمال کی چٹاگانگ میں کاروباری برادری سے ملاقاتیں، 2 طرفہ تجارت بڑھانے کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت۔ بلوچستان میں امن اور ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا، ترقی اور خوشحالی مشترکہ کوششوں سے ہی ممکن ہے، پاک فوج بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دورہ تربت میں گفتگو، فیلڈ مارشل نے اچھی حکمرانی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عوامی شمولیت پر مبنی پالیسیوں کی ضرورت پر زور دیا۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی اور ترقیاتی اقدامات پر بریفنگ دی گئی، فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن سے آگاہ کیا گیا، فیلڈ مارشل نے جوانوں کے حوصلے اور آپریشنل تیاری کی تعریف کی، دفاع وطن کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا، کہا مشکلات کے باوجود فوجی جوانوں کا امن کے لیے اہم کردار رہا ہے۔ دورے میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور چیف سیکرٹری بھی موجود تھے۔ ISPR نے بتایا دورے کا مقصد سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا معائنہ کرنا اور سول و عسکری اداروں کے درمیان رابطہ اور ہم آہنگی مزید مستحکم بنانا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ ایڈیشنل IG CTD آزاد خان کہتے ہیں 18 مئی کو بدین میں بے گناہ شہری کے قتل میں را ملوث ہے۔ بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا کیا، بھارتی دشمن مار دیا۔ خلیجی ملک سے را ایجنٹ سنجیو کمار نے ملزم سلمان کو ہائر کیا، سلمان نے شیخوپورہ اور مریدکے سے ساتھی بلائے، سلمان نیپال فرار ہو گیا۔ عمیر، سجاد، عبید اور شکیل سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے واردات سے پہلے 5 روز تک ریکی کی، اس سے پہلے جتنے ملزمان گرفتار کیے وہ ریکی کرنے والے تھے، اس بار ٹارگٹ کرنے والے پکڑے گئے۔ پاکستانی شہریوں کے قتل میں را کے ملوث ہونے کا معاملہ ہر فورم پر اٹھائیں گے، پوری کوشش ہے کہ ثابت کر کے ملزمان کو سزا دلوائیں۔ سپریم کورٹ کا ہر جج پاکستان میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ہے، پاکستان کو آزاد جج اور آزاد عدلیہ چاہیے، سرکار تعاون نہ کرے تو عدالتوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں آ کر بالکل بدل جاتی ہیں، میں نے ہمیشہ پارلیمنٹ اور منتخب نمائندگان کی عزت کی جو 77 سال سے متاثر رہے۔ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اگر جمہوریت، آئین اور آزاد عدلیہ نہ ہو تو آنے والی نسل کے ساتھ انصاف نہ ہوگا۔
9 मई केस में बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में जिन्ना हाउस की वीडियो चलाई गई। तफ्तीशी अफसर ने कहा वीडियो में मुलजिम शेर शाह नजर आ रहा है। मुलजिम का फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा है। सलमान अकरम राजा ने कहा 27 माह बाद इन्हें याद आया, ये सिलसिला जारी रहा तो पूरा शहर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलीमा खानम कहती हैं दोनों बेटे पुलिस हिरासत में हैं, उनका जुर्म बानी की फैमिली होना है। बानी के साथ खड़े होकर अपना हिस्सा डाल सकते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। जिन्ना हाउस हमले का मफरूर मरकजी मुलजिम शेर शाह खान कई माह तक छुपा रहा और रियासत के खिलाफ डिजिटल मुहिम चलाता रहा। सिक्योरिटी जराये का कहना है 9 मई को जिन्ना हाउस पर हमले के वक्त मुलजिम शेर शाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ था। 9 मई के बाद मुलजिम पहले रूपोश हुआ, फिर लंदन फरार हो गया। पुलिस ने शेर शाह को पाकिस्तान वापसी पर 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। पीटीआई को चाहिए था 9 मई पर मुआजरत कर लेती, मामला शायद बेहतरी की तरफ चले जाते। वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं 9 मई को घर जलाए, एयरबेस पर हमला हुआ, शहीदों की यादगारों पर जूते बरसाए, सब लोगों की वीडियोस मौजूद हैं। जलाओ घेराव करने वाले पीटीआई के कारकुन थे। सवाल हुआ 27वीं तरमीम और नए सूबों पर हुकूमत कितनी संजीदा है। राना सना ने कहा इस पर हुकूमत मुकम्मल गैर संजीदा है। कोई खबर नहीं होती तो ऐसी खबरें चलाई जाती हैं। स्वाबी में सैलाबी रेला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। कई घरों के चिराग गुल हो गए, मकान मलबे में बदल गए। मुतासरीन कहते हैं खाना पानी नहीं, हेवी मशीनरी चाहिए। मजीद कोई रेला आया तो सामान भी नहीं रहेगा। मशीनरी नहीं है, लोग मलबा हटाने का काम हाथों से कर रहे हैं। मैंगोरा में जगह जगह मलबे के ढेर पड़े हैं। मुतासरीन हुकूमती मशीनरी का इंतजार करते रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, कोई मदद को नहीं आता। पाक फौज बरवक्त रेस्क्यू न करती तो हम 6 अफराद जिंदा न बचते। सैकड़ों अफराद की जाने बचाने वाले चरवाहे मोहम्मद खान का कहना है धमाके की आवाज सुनकर जागा, बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, जान की परवाह किए बगैर लोगों को बचाने की कोशिश की। हमारी इत्तला पर सैकड़ों जानें बच गईं, लेकिन हमारी जान को खतरा था। रेस्क्यू करने पर पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक के गजर में चरवाहों से मुलाकात। कहा घंटों पैदल सफर करके 300 जानें बचाने वाले चरवाहों तक पहुंचा। वजीर आला का पैगाम इन तक पहुंचाया। चरवाहों को सेक्रेटेरिएट बुलाकर इज्जत अफजाई की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गजर के रिहायशी वसीयत खान को खिराज तहसीन। कहा वसीयत खान की कबल इस वक्त मतला करने के बायस जानी नुकसान से बचना मुमकिन हुआ। वजीर आजम के गजर में गलोफ के बायस सैलाबी सूरत हाल बनने पर खुसूसी अहकामात। वजीर आजम की एनडीए में जिला इंतजामिया को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा नालों पानी की कुदरती गुजरगाहों के गिर्द तामीरात रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएं। बारिशों और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीजा है। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल। मुल्क भर से 1,18,060 हज दरखास्तें मौसूल की गई। जराये का कहना है सरकारी हज स्कीम के लिए दरखास्तों की मजीद वसूली रोक दी गई। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात का तखमीना 11.5 से 12.5 लाख रुपए है। भारत से बातचीत के लिए भीख मांगने का वक्त गुजर गया। जब भी बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कौमी टीम एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करेगी। टीम में किसी को शामिल करने या निकालने में मेरा कोई किरदार नहीं। हेड कोच ने वेस्ट इंडीज के दौरे पर अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। वनडे कप्तान का फैसला भी सिलेक्शन कमेटी जल्द करेगी। मोहसिन नकवी लाहौर में क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच देखने स्टेडियम आए। जोशीले अंदाज में बैट उठाकर जारहाना शॉट भी लगाया। कालाबाग डैम को सियासत की नजर कर दिया गया। बिजली महंगी करने के जिम्मेदार वो हैं जो डैम नहीं बनने देते। पंजाब में पानी आता है तो जमा करने का बंदोबस्त नहीं। पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट न बनने देने वाले भी जिम्मेदार हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में जिमनी इलेक्शन की मुहिम से खिताब। कहा
पंजाब का पैगाम अमन का है। केपी में दहशत गर्दों को दोबारा लाया गया। 18 सितंबर को शेर की धाड़ होगी। शेर आता है तो पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में चला जाता है। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी की सरबराही में लीगी वफ़द की पीपी रहनुमाओं से मुलाकात। राजा परवेज शरीफ ने कहा कि खुश असलूबी से मामला तय पा गए। दोनों जमातें तयशुदा फार्मूले के तहत इलेक्शन लड़ेंगी। हनीफ अब्बासी ने बताया कि आम इंतखाबात में जहां नून लीग दूसरे नंबर पर थी, पीपी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। जहां पीपी दूसरे नंबर पर रही, वहां लीगी उम्मीदवार नहीं होगा। दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगी। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो लाड़काना की यूसी वारिस डीनो पहुंचे। फरियाद तालपुर के 7 गांवों खैर मोहम्मद बरोही का दौरा किया। सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत बनने वाले मकानों का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के घरों पर सोलर सिस्टम लगाने का ऐलान किया। कहा मुतासरीन के घरों में सोलर सिस्टम के साथ वॉशरूम भी बनाएंगे। ISPR समर इंटर्नशिप 2025 का सफर कामयाबी से मुकम्मल। DGI ISPR के साथ तलबा की खुसूसी नशस्तों का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटर्नशिप में मुल्क भर से तलबा की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। 6 हफ्ते पर मुश्तमिल इंटर्नशिप में 33 शहरों के 6500 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। तलबा ने PMA, NCTCB, POF, हुआ समेत फौजी तनसीबात का भी दौरा किया। पाक अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी और सलाहियतों का जायजा लिया। पाक अफवाज ने अपना काम कर दिखाया। मार्का हक में मुल्क को शानदार फतह दिलवाई। अब सनतकारों की बारी, मार्का मईशत की बारी। मारूफ सनतकार SM तनवीर का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा, हम इस मुल्क की मईशत खड़ी करके दिखाएंगे। हमारा हदफ 100 अरब की एक्सपोर्ट है। मुल्क में छोटे सूबे बनने चाहिए। सूबे का नाम दें या इंतजामी यूनिट, हर डिवीजन को खुद मुख्तारी देनी है। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। इस हुकूमत को कामयाब देखना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने 3 घंटे में बता दिया कि मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। अक़वाम ने साबित किया, हम इराक और लेबनान नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में किसी मजहबी त्यौहार की इजाजत नहीं। प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान की मईशत और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया जाता है। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए भिजवाई गई इमदाद मिस्र पहुंच गई। खुसूसी चार्टर तैयारा 100 टन इमदाद लेकर अल अरीश एयरपोर्ट लैंड कर गया। पाकिस्तानी सफारतखाने के आला हुकाम ने इमदादी अशिया मिस्री हिलाल अहमद के हवाले की। यूक्रेन की तरह गजा के मासूम बच्चों के लिए भी आवाज उठाएं। तुर्क खातून अव्वल अमीना उर्दवान ने अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को खत लिख दिया। अमीना उर्दवान ने लिखा, हर बच्चे को महफूज खानदान में परवरिश का हक है। यह हक किसी खास मजहब, इलाके या नजरिए से मशरूत नहीं। जुल्म के शिकार बच्चों की हिमायत हम सब पर फर्ज है। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका। गजा में मजालिम के खात्मे के लिए मेलानिया को नेतन्याहू को खत लिखने का मशवरा। गजा में 24 घंटे में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। खाने की तलाश में निकले 17 अफराद से होनी गोलियों का निशाना बना। लाहौर कैंट के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अली जफर फाउंडेशन ब्लॉक बन गया। गुलकार अली जफर, उनकी वालिदा कमल अमीन और स्कूल प्रिंसिपल ने ब्लॉक का इफ्तिताह किया। अली जफर ने अपनी फलाही तंजीम के ताउन से बनने वाली लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब का दौरा किया। 9वीं और 10वीं में पोजीशन लेने वाली तालिबात में नक़द इनामात भी तकसीम किए। गुलकार का कहना था, तालीमी निज़ाम तब्दील करके इनकलाब की जरूरत है। आज़ादी और मार्का हक की मुनासिबत से इटली में मुनफरिद फेस्टिवल। दारुल हुकूमत रोम में चौसा जलाटो फेस्टिवल का शानदार आगाज। पाकिस्तानी सफारत खाने के जेर एहतमाम इवेंट 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। अतालवी अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तानी चौसा आम और अतालवी जलाटो के हसीन इम्तजाज को शुरका ने बेहद पसंद किया। पाकिस्तानी सफीर अली जावेद ने मुस्तकबिल में बादाम, अखरोट, खुबानी
اور زعفران فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ معروف اطالوی آئس کریم ساز نے پاکستانی آم کی قدرتی مٹھاس اور اعلیٰ معیار کو سراہا۔ ٹاپ اینڈ T20 سیریز کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہو گئی۔ پاکستان شاہین اسکاچرز کے مد مقابل آئیں گے۔ پہلا سیمی فائنل شکاگو کنگز مین اور ایڈلیڈ اسٹرائکرز کے درمیان ہوگا۔ دونوں سیمی فائنل اتوار کی صبح کھیلے جائیں گے۔ پاکستان شاہینز نے 6 گروپ میچز میں سے 4 میں کامیابی سمیٹی تھی۔ اور ایسٹ افریقی ملک سیشلز میں پاکستانیوں نے دھوم مچا دی۔ چترال کے وقار نے نیچر ٹریل رن جیت لی۔ 22 کلومیٹر کے دشوار گزار ٹریک پر اسلام آباد کے عمر زمان نے دوسری اور مزمل شہزاد نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ انعم عزیز پاکستانی خواتین میں سب پر بازی لے گئی۔ ایونٹ میں پاکستان کے 9 رنرز کی شرکت۔ ARY نیوز کے راجہ محسن نے بھی کامیابی سے فنش لائن عبور کی۔